Good morning. This is Surya Yadav from Fluent 2 branch, first in Nugapur, second in Orain. If you want to join with us, so join us offline and online both. Here we are going to teach you poem, one poem. You can speak is both. While someone has told me, sir, poem hai, poem hai. So I am telling you, whatever you want, you can. There is a difference between pronunciation. There are a lot of pronunciation which you want. It's important you can use. Today we are going to teach you a roadside stand by Robert Frost. In ninth we have taken the road not taken. You know about ninth poem by Robert Frost, the road not taken. Same poem is the road side stand, a roadside stand. Here by Robert Frost. Who was Robert Frost? You know about very well. This man was American poet. This man was American poet and he was a 20th century's poet. And he knows one thing very well कि how to write and how to feel. So इसका दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट था. वो पहला पोएम बनाता था तो कंसर्न होता था ह्यूमन के क्वालिटी, ट्रेजेडी और फियर. अब जानते रहिएगा इनका दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है ट्रेजेडी और दूसरा है फियर. मतलब इनके जो इतने भी दो हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी पर रहते हैं. आज जो रोड साइड स्टैंड वी आर गोइंग टू रीड, ये स्टैंड हो रहा है किस पे तो ये सिर्फ है एक दुर्दशा है, एक प्लाइट है, एक मजबूरी, एक स्टारवेशन है कि लोग आज भी रोड पे अपना दुकान लगाते हैं अपना रोजी रोटी करने के लिए. सो आज हम सिर्फ एक लाइन पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट एंड हम कल फिर पढ़ेंगे पार्ट टू. व्हाई वी आर गोइंग टू रीड पार्ट बाय पार्ट? बिकॉज वी वांट टू मेक यू वेरी अंडरस्टैंड एंड वी वांट टू मेक यू क्लियर फ्रॉम दिस बोर्ड एंड वी वांट you should get a lot of marks in English and you can improve your skill whatever you want in English. So मैं कुछ बताता हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में. मैंने कुछ लिखा हुआ है. I've written something for Robert Frost. After that I will tell you something. And in this video you can get whatever I'm going to speak. Robert Frost 1874 to 1963 is a highly acclaimed American poet of the 20th century. Robert Frost wrote the character, people and landscapes. His poems are concerned with human tragedies and fears. His reactions to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burden. Stopping by wood on a snowy evening, birches, mending wall are a few his well-known poems. All be well-known poems है. In the poems, a roadside stands with a flightless, clarity and with the different sympathies and humanities sympathy and humanity. Sympathy की बात होती है and humanity की बात होती है. Both talk करते हैं अपने Robert Frost. It was a some and brief introductions about Robert Frost. You have understood, so thank you so much. Just we are going to start our poem and I will teach you only part 1 and I will give you tomorrow part 2. Let's start. So let's start. I will start and I will speak one by one paragraph. You should understand, you should listen carefully. Okay, start. The little old house was with a little new shed in front of the edge of the road where the traffic sped. छोटे छोटे जो घर होते हैं, लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद लिटिल न्यू सेट. वो बाहर निकलते हैं एक नए सेट के लिए, एक नए छाये के लिए, एक नए पावर के लिए, एक नए सोच, एक नए उम्मीद के लिए कि अगर हम जाएंगे बाहर तो हम भी कमा सकते हैं. वो कहाँ आते हैं? इन फ्रंट ऑफ द एज. एज मींस किनारा होता है. एज ऑफ द रोड के किनारे पाते हैं जहां पे ट्रैफिक बहुत स्पीड में रहती है. ट्रैफिक का स्पीड बहुत होता है. जैसे सपोज दैट इट इज अ रोड and here you are going to make your stall. एक आपने रास्ता लिया, वहां सब्जी का दुकान लगा लिया, सब्जी का दुकान लगा दिया, एक्सेट्रा. आपने अपना दुकान सेट कर दिया. तो ये क्या है? एज ऑफ द रोड. ये क्या है? एज ऑफ द रोड. वहां पे जाते हैं और दुकान लगाने की कोशिश करते हैं. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड. और वो बहुत ज्यादा पैथेटिकली प्लीड मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रॉमिस करते हैं, एक ऐसी सोच लेके आते हैं. उनको उम्मीद है कि हमारे लोग जो रोड पे चल रहे हैं हमसे क्या करेंगे? हमारे सामान को परचेस करेंगे. क्या करेंगे? परचेस करेंगे और वो भी सरवाइव कर सकते हैं. समझ में आया? सरवाइव कर सकते हैं. यहाँ क्या? अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड. हमसे वो बहुत विनम्रता, बहुत आस लगाए, विनती करते हैं कि हम उनके पास जाएंगे और सामान खरीदेंगे. It would not be fair to say for a dole of bread. You should know. No, dole of bread. Dole of
ब्रेड। यहां मतलब क्या हो गया, वो आपसे भीख की रोटी नहीं मांग रहे। Someone is thinking कि they are taking donation. नहीं, they are not taking donation. They are not going to give you ask to you please seek me donation, seek me donation. No, don't give me donations. You will have to purchase my things, my goods, and then you will have to give my values of goods. Then I will think कि you are supporting me. हम आपसे ये कहते हैं हमारे पास आओ, हमारे सामान खरीदो और हमें पैसा दो। हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे सामान को लो, हमको भीख दो और हमारे सामान को मत लो। I don't need your donation. I am not thinking about dollar bread. I am doing my job and I am seeking my money. ये बोलना चाहते हैं। But for some of the money, the cash which flow support. अगर but for the some money, अगर हमारे पास भी कुछ पैसे आएंगे तो हम भी क्या करेंगे, which फ्लो सपोर्ट, आपको थोड़े से पैसे से जो हमें कैश मिलेगा उससे हम भी फ्लो करेंगे। फ्लो मतलब आगे बढ़ेंगे, जीवन यापन बढ़ाएंगे। बट द फ्लावर ऑफ सिटी फ्रॉम सिंकिंग द विंटरिंग फैन। जैसे आज फ्लावर ऑफ सिटी देखोगे चमक रही है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं, सिंकिंग कर रहे हैं, डूब रहे हैं, विंटरिंग और फ्लैट हो रहे हैं। क्यों फ्लैट हो, हमारे पास कुछ है ही नहीं, खाने पीने रहने के लिए, सर्वाइव के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड। द पॉलिश ट्रैफिक, एक स्पीड में ट्रैफिक चलती हुई जा रही है, वो हमारी तरफ देख भी नहीं रही है, क्योंकि उसके पास एक माइंड सेट हो चुका है, एक माइंड बन चुका है उसके अंदर। वो माइंड क्या बन चुका है, वो और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ साइट। वो हमको देख के चिढ़ते हैं कि हमारा सामान गंदा है, हम नहीं ले पाएंगे। हमारे यहाँ वो आने पे अपना इंसल्ट फील करते हैं कि मैं रिक्शा पे सामान लूंगा, मैं रिक्शा सामान नहीं लूंगा, मैं रोड पे सामान लूंगा नहीं लूंगा, मैं मॉल में जाके सामान लूंगा, बड़े बड़े सामान लूंगा, लेकिन हमारे यहाँ सामान नहीं लेते हैं। उनके अंदर एक इरिटेट होता है। आउट ऑफ सॉर्ट मतलब होता है इरिटेट होना। आउट ऑफ सॉर्ट मतलब होता है इरिटेट होना। क्या होना, इरिटेट। तो इरिटेट होते हैं हमारे सामानों से, हमारे सोच से, हमारे विचार से। आगे हम पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। इट हैविंग अ लैंडस्केप मेयर्ड विद द आर्टलेस पेन ऑफ साइन दैट विद द यन टर्न रॉन्ग, यस टर्न रॉन्ग। वहां पे एक लोग आते हैं, कोई भी अगर आता है अभी लैंडस्केप करता है तो हमारे लिए नहीं करता, क्योंकि वो रुक के हमको समझाता है कि तुम्हारी वजह से नॉर्थ का रोड खराब हो गया, यस का रोड खराब हो गया, वो चौराहा खराब हो गया, ये चौराहा खराब हो गया, तो रोड को जाम कर दियो, रोड को भीड़ लगा दियो, रोड आधा कर दियो। हमें सुनाते हैं लेकिन हमारा सामान एक भी नहीं लेते हैं। हमको 50 कहानी बताते हैं कि हमारा सामान नहीं लेते हैं। आगे बोलते हैं ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड वेरीज इन अ वुडन गॉड। हमारे उस वुडन का कोई भी सामान खरीदते उड़ते नहीं है, बल्कि कहते हैं और नुक्ड नेट गोल्डन स्क्वाड विद अ सिल्वर वर्ड। और जो सामान नहीं रहते उसको बोलते हैं नुक्ड नेट, मतलब ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है। सिल्वर कॉर्ड में जैसे मान लो आप एक लौकी ले लो या कोई सामान ले लो, जिसको दोस्त देते हैं तुम्हारा लौकी गंदा हो चुका है, तुम्हारे समोसे खुले रखे हुए, हम तुम्हारे नहीं ले पाएंगे, बहुत ड्रामा बताते हैं और अंत में मजबूर कर देते हैं एक काम करने के लिए। एक काम तो हो गया। अब खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलने जा रहा है 3 लाइन, ध्यान सुनिएगा। ये 3 लाइन खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलेंगे और बताएंगे आपको उनके बारे में। देखो सुनो क्या बोलते हैं वो, यहां शुरू होगा। पहले एक लाइन सुन लीजिए। और ब्यूटी रेश इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सी। हमको बताते हैं तुमने ये जो माउंटेन सी है उसके ब्यूटी को खा लिया है। जैसे ये रोड है, यहाँ पे एक ब्यूटी है, माउंटेन है, माउंटेन यहाँ पे सिनेमा हॉल है, यहाँ पर स्टॉल लगा दिया, इसके स्टॉल से ब्यूटी छुप गई है। तो हमको भी सुनाते हैं तूने अपने ब्यूटी को खा लिया है, तूने माउंटेन के सीन को तोप दिया है, ढक दिया है, जिसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा है। आगे बोलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देखो ध्यान सुनना। यू हैव द मनी, आपके पास मनी है, नो डाउट। इफ यू वांट टू बी मी, तुम्हारे पास मनी है, तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? यू वांट टू बी मी, तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? Why keep your money and go alone? Why keep your money? अपने पैसे को अपने पास रखो and go alone. अकेले क्यों चले जाते हो? तुम पैसे कुछ इन्वेस्ट क्यों नहीं कर देते हो? कुछ पैसे खर्च कर दोगे तो उनको भी उनका सर्वाइव हो जाएगा। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. उनका जो दुख है ना, उनको शिकायत नहीं है, क्योंकि वो शिकायत करने किसी से जानते ही नहीं है। फिर सुनो देखो बोलते हैं और the beauty rest in the beautiful mountain scene. और तुम उस माउंटेन को रेस्ट को तोप देते हो और you have the money, तुम्हारे पास पैसे तो हैं लेकिन तुम इतने मतलब, but you want to be me, इतने मतलब क्यों तुम हो? Why keep your money? अपने मनी को क्यों रखते हो अपने जेब में? And go alone, अकेले क्यों जाते हो? कुछ खरीदो। To the heart to be salary wouldn't be my complaint. कुछ इनसे खरीद लो, ये तुमसे कंप्लेन नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। ये पार्ट 1 था। यदि आपको देखना है तो लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम पार्ट 2 कल लेके आते हैं और द रोड साइड स्टैंड हम कल खत्म करते हैं। थैंक यू।